Hello students, today we will see unit number 9, Lion, the King of the Forest of Standard 4 subject English. Students, ये तो आपको पता ही है कि lion को king of forest कहा जाता है. Okay, now see in activity 1. Can you name the animals in the pictures given below? Tell your classmates and teacher which is your favorite animals and where have you seen there. First picture किसकी है students? Lion. Okay, second picture is of tiger. Yes. Third picture is of peacock. Yes. Then fourth picture is of owl. Okay. Fifth picture student किसकी है? C. Fifth picture is of crocodile. Okay. Then sixth picture is of deer. Then seventh picture is of snake. Cobra है cobra. Then is leopard, then bat, then it is python and bear. ये सब student animal है students. You are aware of it. Yes, आपने कहीं ना कहीं इन animal को देखा ही है, right? In zoo, in okay. So first animal is lion, tiger, peacock, owl, crocodile, deer. Yes. Then cobra, leopard, bat, then it is python and bear. Okay. Now students, using the words like whiskers, claws, paws, tail, wings, beak, fur, feather, describe your favorite animal or bird from the pictures given below. स्टूडेंट्स, आपको एनिमल के बारे में लिखना है, जैसे यहाँ बर्ड के बारे में, उसका क्लॉ, पाँव, टेल, विंग सबको मतलब मेंशन करके आपको हियर यू हैव टू राइट अबाउट एनिमल और अबाउट फेवरेट बर्ड यू हैव टू राइट स्टूडेंट्स. ओके. नाउ डिफरेंस बिटवीन नॉक्चुरनल एंड ड्यूरनल एनिमल. स्टूडेंट्स, अभी आपको समझना है कि नॉक्चुरनल एनिमल और ड्यूरनल एनिमल किसको कहते हैं. Nocturnal is characterized by those animals that do a lot of activities during the night and sleep during the day. Nocturnal animal कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? जो रात को जागते हैं और दिन को सो जाते हैं, राइट. स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो रात को करते हैं और दिन में सो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉक्चुरनल एनिमल्स बोलते हैं. ड्यूरनल एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग अ डे एंड स्लीप एट नाइट. ड्यूरनल एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दिन को काम करते हैं और रात को सो जाते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन नॉक्चुरनल एंड ड्यूरनल एनिमल्स. नॉक्चुरनल एनिमल्स इज दैट who do lot of activities at night and sleep during the day, and diurnal animals do a lot of work during the day and sleep at night. Okay. Mammals, insects, birds and reptiles are example of diurnal animals. Okay. Mammal है, insects है, birds है, reptiles है, ये सब diurnal animals के example है. While bats, owl and cats are nocturnal animal. बैट्स, आउल, कैट ये सब नॉक्चुरनल एनिमल है जो रात को जागते हैं, और इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, वो रात को सो जाते हैं और दिन को जागते हैं. ओके. Now discuss the following questions and share your answers with your friends and teacher. Which of these animals in the picture are nocturnal? स्टूडेंट, जो हमने देखा था वो नॉक्चुरनल कौन से थे? लायन है, टाइगर है, आउल है, क्रोकोडाइल है, लेपर्ड है, बैट एंड बियर आर नॉक्चुरनल एनिमल्स. लायन, टाइगर, आउल, crocodile, leopard, bat and bear. In these pictures, yes, in the above pictures, lion, owl, crocodile, tiger, leopard, bat, bear, these all are called nocturnal animals जो रात को जागते हैं. Which of these animals in the picture are diurnal? जो बच्चा peacock है, deer, cobra and python are diurnal animals है ना. peacock, deer, cobra and python are called diurnal animals. Which of the animals in the pictures live on land? Land पे कौन से एनिमल रहते हैं? Lion, tiger, owl, leopard, bat, bear, peacock and other live on land.
लैंड पे कौन से एनिमल रहते हैं? लायन, टाइगर, आउल, लेपर्ड, बैट, bear, peacock and deer. These all live on land. Which of the animals in the picture live in water? वाटर में कौन से रहते हैं? क्रोकोडाइल, है ना. इसमें जो पिक्चर में थे सिर्फ क्रोकोडाइल ही वाटर में रहता है. विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ? लैंड पे भी रह सकता है एंड वाटर पे भी रह सकता है. क्रोकोडाइल, कोबरा एंड पाइथन कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. जो लैंड पे भी रह सकता है एंड वाटर में भी रह सकते हैं. वैसे पिक्चर में कौन से थे स्टूडेंट्स? क्रोकोडाइल, पाइथन एंड कोबरा. ओके, नाउ आपको इधर एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो लैंड पे रहते हैं, वाटर, लैंड एंड वाटर दोनों पे. ओके, नाउ इन एक्टिविटी 4 यू सी, रीड द पोएम अलाउड एंड एन्जॉय द रोर ऑफ द लायन. लायन रोर, लायन का आवाज़ कैसा होता है? रोर. ट्राई टू इमिटेट द रोर ऑफ अ लायन विथ योर क्लासमेट. A lion's roar. They say a lion's roar can be heard 5 miles away. Therefore, if you wake up one night and you hear a lion's roar, which is completely different from the old man's snore, don't panic. The lion could be at least 5 miles away. Then, on the other hand, maybe you should panic. The lion could actually be only 5 minutes away. है ना स्टूडेंट्स? A lion roar. अभी ये क्या है? स्नोर करते हैं स्टूडेंट्स, रोर करते हैं, वो लायन का आवाज़ होता है, रोर, है ना. नाउ ये किसने लिखी है स्टूडेंट्स पोएम? डेविड हैरिस ने ये पोएम लिखी है. अभी इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट्स? सी जब है ना लायन रोर ऐसे ऐसे करता है, रो कैन बी बहुत दूर हो सकता है. देयरफॉर इफ़ यू वेक अप एट वन नाइट, कभी रात को आपने आवाज़ सुनी लायन रोर, ऐसे लायन की आवाज़ सुनी, जो ओल्ड मैन जो है ना रात को खराटे लेते हैं उनसे तो बहुत अलग होती है ना. तो जब सो जाते हैं उसमें फिर आप ऐसे फ्रॉम द ओल्ड मैन नो, डोंट पैनिक, द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 miles अवे. डोंट पैनिक यानी आप फ्राइटन, डर मत जाना. पैनिक यानी डर नहीं जाना. लायन तो एटलीस्ट 5 miles अवे हो सकता है. देन ऑन द अदर हैंड मे बी यू शुड पैनिक, द लायन कुड एक्चुअली बी ओनली 5 minutes अवे. ऑन द अदर हैंड शायद आपके बाजू में ही खड़ा हो लायन, 5 मिनट की दूरी हो, तो आप पैनिक कर सकते हो, तो आप डर सकते हो. फ्राइटन, पैनिक यानी डर जाना. तो ऐसा कभी हो सकता है ना स्टूडेंट्स, अभी होगा ऐसा सबके साथ होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी. ऐसा हो सकता है, इट इज़ ओनली द पोएम, इट इज़ ओनली द इमेजिनेशन ऑफ अ डेविड हैरिस. जो पोएम लिखी है उनकी ये सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सिर्फ एक पोएम लिख रहे हैं, राइट. सो डोंट बी पैनिक ऐसे लिखा गया है. नाउ वो लायन जो रोर करता है, लायन का आवाज़ रोर करता है, वो आपके बाजू में भी हो सकता है एंड दूर भी हो सकता है. सो पैनिक यानी फ्राइटन होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स आपको साउंड मैच करना है. मूव कौन करता है स्टूडेंट? काऊ. काऊ मूव करती है, ये तो आपको पता है ना. ये तो बहुत इजी है. काऊ मूव करती है, राइट. देन अ फ्रॉग क्रोक्स. सॉरी, ए डैश ट्वीट ट्वीट. ट्वीट ट्वीट कौन करता है? स्पैरो, राइट. क्वैक क्वैक डक करती है. ऑइंक ऑइंक पिक करता है, राइट. से बाबा. बाबा कौन करता है? शीप. और ने हॉर्स. हॉर्स ने करती है. ये सब साउंड्स हैं जो एनिमल्स करते हैं. Now read activity 6. Read and enjoy the story. Dear friends, here is a story about Simba, the lion and the wind. The story is how Simba saved non-renewable energy, example petrol, by introducing renewable energy, that is wind. अभी ये स्टूडेंट लायन और विंड की स्टोरी है. ओके, नाउ वी विल एंजॉय दिस स्टोरी. लिसन इट केयरफुली. देयर वाज वंस अ वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा who lived on the African savanna. Simba would play in the plains, running and jumping with his friends, the leopards and other lions in the area. स्टूडेंट एक लायन था, उसका नाम क्या था?
सिम्बा, ओके। वो कहाँ रहता था? अफ्रीकन सवाना। नाउ अफ्रीकन सवाना एक अफ्रीकन फॉरेस्ट को बोला जाता है, राइट। सवाना को एक फॉरेस्ट भी बोला जाता है। सिम्बा वुड प्ले इन द प्लेन्स, खेलता था। प्लेन्स यानी स्टूडेंट्स जो ओपन लैंड होता है ना फॉरेस्ट का, उसको बोलते हैं। जंप करता था, खेलता था अपने दोस्तों लेपर्ड के साथ, और दूसरे लायन थे ना उनके साथ खेलता था। बट इसका नाम क्या था? सिम्बा। यस, सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर एवरी टाइम ही रोड, ही क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग विंड, इट सीम लाइक अ हरिकेन। नाउ स्टूडेंट्स, जब सिम्बा को बहुत स्पेशल गिफ्ट थी, जो रोर करता था ना, आवाज़ करता था, तो उसको ऐसा हवा की तरह इसको आवाज़ आता था, जैसे एकदम ह्यूरिकेन की तरह लगता था, राइट। वो ह्यूरिकेन की तरह आवाज़ लगता था। On the savannah where Simba lived, there were a lot of different kinds of animals, giraffes, elephants, hyenas, etc. And even though it wasn't a particularly green place, there were lots of species of trees and plants. Now students, species, hurricane यानी storm, तो मैंने आपको बताना ही भूल गई। hurricane स्टूडेंट्स, hurricane यानी storm, storm यानी हवा थी ना, वो ऐसे है ना आवाज़, उसमें इसके रोर में ऐसा आवाज़ था जैसे विंड की हवा चलती है ज़ोर से, ऐसे। ऑन द सवाना वेर सिम्बा लिव्ड, जहाँ पे ये लायन सिम्बा रहता था, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी लगते रहते थे, जैसे कि जीराफ है, एलिफेंट, हाइनास। इवन दो इट वाजंट द पर्टिकुलरली ग्रीन प्लेस, देयर वर लॉट्स ऑफ स्पाइसेस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। भले वो ग्रीन नहीं था, पर बहुत सारे उधर ट्रीज और प्लांट्स भी थे। वन डे एज सिम्बा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, दे सॉ एनॉर्मस मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन by digging into the earth. The humans are building oil wells, said one of the wisest lions. एक दिन सिम्बा वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ अ प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। द ह्यूमंस आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स, सेड वन ऑफ द वाइजेस्ट लायन। लायन ने क्या बोला कि ये ह्यूमन कि ये डिग करते हैं, मतलब वो सिम्बा एक बार फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, तो उसने देखा कि लोग है ना ऑयल निकालने के लिए कि अर्थ को डिग कर रहे हैं, है ना। लायन ने बोला, डे बाय डे द मैन बिल्ट मोर एंड मोर ऑयल वेल्स, डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। उनको लगा कि ये तो ऑयल निकालने के लिए लोग हैं ना अपने नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जो सराउंडिंग्स को होता है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विथ एंड फ्यूअर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट, एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मैन दैट वर कॉजिंग इट ऑल। सिम्बा थोड़े ही उसको फ्रेंड्स थे खेलने के लिए, in which to run about, and he knew that it was the men that were causing it all. So he decided to ask the wisest lion in the area for a solution. The wise old lion said, the only solution is for the men to stop using petrol and use renewable energies such as wind instead. जो वाइजेस्ट लायन था ना, उससे उसने सलाह ली कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लायन, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो वाइज लायन ने बोला कि द ओनली सॉल्यूशन इज़ फॉर मैन, जो इंसानों को पेट्रोल स्टॉप कर देना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी को सच एज विंड को यूज़ करना चाहिए। दैट गेव सिम्बा एन आइडिया एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द वर्ल्ड, विंड पावर। इसलिए उसने आइडिया आई सिम्बा को, और क्या किया उसने? पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज विंड के जरिए उसने किया। सो ही वेंट राउंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड रोरिंग विथ ऑल हिज माइट टू क्रिएट अ ग्रेट विंड दैट वुड हेल्प मैन यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके रोर में ऐसी ताकत थी, है ना, सो वो कंट्री घूमा रोरिंग करते करते कि जो उसकी जो विंड है वो मोर रिन्यूएबल एनर्जी हो सके। रिन्यूएबल यानी जो हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी विच इज़ कैन बी रिप्लेस्ड है, ओके, इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स दैट्स एनर्जी विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन द एंड सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली। ठीक है, सिम्बा सक्सीड हो गया स्टॉप करने के लिए पेट्रोल, एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कम्प्लीटली।
पूरा रिकवरी हो गई सवाना की, है ना. सक्सीड यानी टू अचीव समथिंग. ओके, देन रिकवर यानी टू गेट बेटर. कंप्लीटली मीन्स फुल्ली. मैनकाइंड यानी ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट. सो ये लायन ने इतनी अच्छी चीज़ की स्टूडेंट्स, जो रिन्यूएबल सोर्सेज विंड को ज़्यादातर यूज़ कर सके लोग, ऐसे उसने इन्वेंट किया. Now let's know more about renewable and non-renewable source of energy. Difference between renewable and non-renewable energy, students. Renewable energy sources are one which don't run out, which can be renewed. We can keep using them and we will never run out forever. Example of renewable sources include wind, water power, hydroelectric and solar power, light from the sun. Student, renewable sources of energy यानी जो रन नहीं कर सके उसको बोलते हैं. Which can be renewed, जो वापस से renewed हो सके. We can keep using them and we will never run out forever. हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं और कभी भी रन नहीं करते. एग्जाम्पल रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड विंड, वाटर पावर एंड सोलर पावर. ये सब क्या है स्टूडेंट्स? रिन्यूएबल एनर्जी है. Non-renewable energy sources are ones which are limited. As we use them to generate energy, they get used up and can't be used a second time. There are three main non-renewable energy sources which are running out fast: coal, oil and natural gas. Non-renewable energy sources कौन से स्टूडेंट? लिमिटेड है ना. एज वी यूज़ देम, हम जो यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए, जो यूज़ अप हो जाता है और वापस सेकेंड टाइम हम यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. सो कौन से हैं वो? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस स्टूडेंट्स. सो अब डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स. हु वाज सिम्बा? वेयर डिड ही लिव? स्टूडेंट्स, आपको पता है सिम्बा कौन था? सिम्बा तो एक लायन था, है ना. He lived in the African savannah. Where was Simba's special gift? Whenever Simba rode, he created a strong wind like a hurricane, है ना. What did Simba see when he was playing? Simba ने क्या देखा कि जो लोग डिग कर रहे थे मशीन, बिग मशीन से, तो क्या नेचुरली जो सब क्या हो रहा था? नेचर को डिस्ट्रॉय हो रहा था. सो वॉट डिड सिम्बा डू टू रिकवर द सवाना? उसने क्या किया? विंड को लॉन्च किया. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस आई विल गिव यू टू राइट. नाउ वी विल सी एक्टिविटी 8, एनिमल idioms. Read the idioms and their meanings carefully and try to make 3 sentences for each idiom after reading and discussing the example given below. Cat nap, a short sleep. I am going to have a cat nap while you are cooking dinner. Copycat, a person who does the same thing as someone else. जो copycat किसको बोलते हैं? जो एक करता है उसको देख के दूसरा करता है, उसको copycat कहा जाता है. तो इसमें से आपको क्या है? sentences बनाने हैं. These all are the sentences. Means my sister is such a copycat. First she bought the same car as me and now she is applying to my school. Dog days, very hot days. Dog days का meaning क्या होता है? यानी बहुत गर्म दिन. I sleep in the basement during the dog days of August. Have a cow. Get extremely upset. My teacher had a cow when she realized nobody had done the homework. Right, students? These all are the sentences, meanings and the sentences. Means raining cats and dogs. Raining heavily. I forgot my umbrella and it was raining cats and dogs. Let the cat out of the bag. Tell a secret. What is the meaning that let the cat out of the bag? ये सब meanings है and sentences में turn किया है. Right? Now see the activity 9. Get a quick look at our 10 cool facts about the gorgeous king of the jungle, lion. Student, अब आप lion के बारे में पढ़ोगे. Lions usually live in groups of 10 to 15 animals called prides. ठीक है ना, वो ग्रुप में रहते हैं लायन, और ग्रुप ऑफ एनिमल को हम प्राइड बोलते हैं. ठीक है, 10 to 15 एनिमल के साथ ही रहते हैं. एन एडल्ट मेल्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर्स अवे. स्टूडेंट, जो बड़ा लायन होता है ना, एडल्ट लायन, वो जब रोर करता है ना, तो आप 8 किलोमीटर के दूर हो ना तो भी उसकी रोर इतनी आवाज़ सुनाई देती है. लायन में स्लीप फॉर अप टू 20 आवर्स अ डे. एक दिन में वो 20 घंटे तक लायन सो सकता है. और एडल्ट मेल रोर करता है तो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है?
8 किलोमीटर तक आपको दूर हो तो भी सुनाई देता है उसकी रोरिंग, राइट। एंड लायन कैन स्लीप 20 hours a day. A female lion needs 5 kgs of meat a day. A male needs 7 kgs or more the day. फीमेल लायन को कितने किलो मीट चाहिए एक दिन में? 5 किलो, 5 kgs मीट, राइट। और मेल को 7 kgs चाहिए या उससे ज़्यादा भी एक दिन में। सो दीज आर द फैक्ट्स। आप जानते थे ये सब लायन के बारे में? सी द नेम फॉर अ बेबी लायन इज़ अ कब, वेल्प और लायोनेट। जो लायन का बच्चा होता है ना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कब, वेल्प और लायोनेट। फीमेल लायंस डू 85 to 90% ऑफ द प्राइड्स हंटिंग, विलिस द मेल लायंस पेट्रोल द एरिया एंड प्रोटेक्ट द प्राइड। फीमेल लायन है ना हंटिंग करते हैं और मेल लायन प्रोटेक्ट करते हैं उनकी प्राइड को। इन द वाइल्ड लायंस लिव फॉर एन एवरेज ऑफ 12 to 16 years. दे लिव अप टू 25 years इन इम्प्रिजमेंट। स्टूडेंट्स, लायन है ना 12 से 16 साल तक वो जीते हैं, राइट। पर जो 25 ईयर जेल में इम्प्रिजनमेंट में रह सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सब लायन की खासियत है। आप जानते थे ये? लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम डस्क टिल डॉन। सुबह होते ही सीधा शाम हो ना तब तक वो हंट कर सकते हैं खाने के लिए। लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड mostly from dusk till dawn. Female lions reach 2/3 of their adult size by the time they are 2 years old. Female lions reach 2/3 of their adult size by the time they are 2 years old. A lion can run for short distance at 50 and leap as far as 36 feet. 50 मेगा से वो दौड़ सकते हैं 36 फीट लीप करके। स्टूडेंट्स, सी इतना वो दौड़ सकते हैं। लायंस हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स इन फॉरेस्ट। किसका शिकार करते हैं लायंस स्टूडेंट्स? डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स एंड फॉरेस्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस अबाउट लायन। दिस 10 फैक्ट्स है ना कि कहाँ रहते हैं, कैसे वो हंटिंग करते हैं, उनके बेबी का नाम क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, राइट। नाउ इन द एक्टिविटी 10 द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स अबाउट द सेंचुरी यू विजिटेड फ्रॉम द टेबल, है ना। ऑल्सो टेल देम अबाउट द एनिमल्स यू हैव सीन इन फॉरेस्ट और जू and which century you would like to visit. Gujarat state came into existence on May 1, 1960 after the division of the state of Bombay. The total geographical area of the state is 19,60,024 square kilometers, out of which 18,961.56 square kilometers, that is 9.67%, is the declared forest area. Now student, ये गुजरात एरिया के बारे में है। गुजरात स्टेट कब एग्जिस्टेंस हुआ था? May 1, 1960 में, आफ्टर द डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। देन जोग्राफिकल एरिया कितनी है गुजरात की? इतने किलोमीटर्स जो मैंने बताया, उसमें से 9.67% क्या है स्टूडेंट? फॉरेस्ट एरिया है। एंड 7.72% ऑफ एरिया एज फॉरेस्ट कवर। The unique features of the state are the climatic and geographical condition, that is the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands. Students, इसकी खासियत क्या है कि उसकी ग्रीनलैंड जो है, कोस्टलाइन है, सॉल्टी डेजर्ट है, जो हमारा रन ऑफ कच्छ में ये सब है ना, वो इसकी खासियत है। These factors have given the state a diversity of plant life and animal life. The Royal Asiatic lion and wild ass have their last resorts of the world in Gujarat. ये फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ में डाइवर्सिटी होते हैं। द रॉयल एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड एस हैव देयर लास्ट रिसोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन गुजरात, ठीक है। कौन से रिसोर्ट हैं? द रॉयल एशियाटिक लायन और वाइल्ड एस हैं, उनको एटलीस्ट लास्ट रिसोर्ट्स हैं। द एनिमल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 14% फिशेस, 18% रेप्टाइल्स, 37% अविफाउना। द बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन है, उसको अविफाउना बोलते हैं स्टूडेंट्स।
कितने टाइप के 14% फिशेस हैं, 18% रेप्टाइल्स, स्नेक एंड पाइथन एंड ऑल, 37% अवीफाउना मीन्स द बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आते हैं, जो जोग्राफिकल पीरियड उसको बोलते हैं, एंड 25% ऑफ द मैमल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये सब मिला के ये सब रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज एंटर्ड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट। गिर नेशनल पार्क, ये सब है ना स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। देखो गिर नेशनल पार्क 1975 ईयर एस्टिमेटेड, एरिया है 256.71, लोकेशन है सासन गिर डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़। मेजर स्पाइसेस कौन कौन है उधर, लायन, लेपर्ड, चीता, चौसिंगा, हाइना, देन ममर, ये सब रहते हैं। ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क है वेरावल डिस्ट्रिक्ट भावनगर, वहाँ पे क्या कौन कौन है पाए जाते हैं, वुल्फ, हैरीज, हरपोथफाउना, ब्लैकबर्ग, लेसर फ्लोरिकन। वंसदा नेशनल पार्क वो वंसदा डिस्ट्रिक्ट नवसारी में है, एंड विच एनिमल्स आर फाउंड द लेपर्ड, हाइना, चीता, चौसिंगा, हर्पेटोफाउना बर्ड्स। नाउ मरीन नेशनल पार्क इज 162.89 एरिया स्क्वायर में है, इट्स गुल्फ ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट जामनगर में है। नाउ स्पॉन्जेस, कोरल्स, जेलीफिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेरियोस्टर, स्टारफिश, लॉबस्टर, डॉल्फिन, डुगॉन, वाटरफॉल्स, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ। नाउ टोटल स्क्वायर किलोमीटर स्टूडेंट्स कितने हुए, 469.67। ओके, दीज ऑल आर द, ये जो एरिया कवर होता है ना, जो मैंने बोला था कि फॉरेस्ट लाइफ में ये गुजरात के कवर होते हैं। Here we finish this lesson. I hope you understood this lesson. Okay, now we will one by one we will see the lesson. We saw first of all what we saw, different types of animals, right? Different types of animals हमने देखे कि कौन से थे, lion, owl and peacock, crocodile, right? Then we saw nocturnal and diurnal animals students. हमने nocturnal and diurnal animals के बारे में पढ़ा, मीन्स nocturnal जो रात को जागते हैं, diurnal यानी जो दिन को जागते हैं, right? Then we saw about different types of animals. Then we saw poem on a lion. Then we saw the noise of the lions, right? Noise of the birds and all animals. Then we saw the story of lion and the wind called Simba. Simba के lion उसके बारे में हमने जाना. Then we saw about renewable and non-renewable sources of energy students. Renewable source of energy means which don't run out, and non-renewable यानी जो limited होते हैं, जो हम वापस नहीं create कर सकते, right? Then we saw the question answers about Simba, then the meaning देखा, then how it is created in the sentence, right? Then we saw about the lion, facts about lion, 10 facts about the lion जो हमको पहले पता नहीं था, but now we understood. जो फीमेल बच्चे को उसको क्या बोलते हैं, लायन कितने घंटे तक सो सकता है एंड और कितना खाना खाता है, राइट? फीमेल लायन एंड मेल लायन कितना खाना दिन में खा सकते हैं, राइट? देन वी सॉ अबाउट द नेशनल पार्क, कितना किलोमीटर गुजरात की एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, एंड वी सॉ अबाउट द ऑल नेशनल पार्क इन द Gujarat. So here we complete the lesson. Okay, now notes will be given soon after the uploading of this lesson. Okay, thank you so much.